کشمیر کی تصویر دکھانے کا اور وہ بات بتانے کا جو حقیقت پر مبنی ہے، کہانی نہیں ہے، فسانہ نہیں ہے۔ میرے گھر اور آپ کے گھر کی یہ بات ہے جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بات نہیں، اب یہ مسئلہ بن چکا ہے اور یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ ریاستی ادارے تو خاموش ہے، مذہبی پیشواؤں کی خاموشی پر بھی سوال ہے، سیاستدان جو مختلف معاملات پر ہر دن بیانات دیتے ہیں ان پر بھی سوال ہے، لیکن جموں کشمیر میں منشیات سے جو تباہی مچ رہی ہے، اب اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ 4 میں سے 3 ڈرگ یوزرز ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی والا معاملہ جو ہے یہ اب کشمیر وادی کے اندر بڑھ رہا ہے۔ اب یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ میں لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں، 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور یہ لگاتار چل رہا ہے۔ اور 4 میں سے 3 یوزر جب ڈرگ ایڈکٹ یہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہو گئے ہیں تو معالجین کا ماننا ہے کہ صورتحال انتہائی خراب ہے، اور یہ صورتحال اس لیے انتہائی خراب ہے کیونکہ اس پر نکیل کسنے کے لیے جو ہنگامی بنیادوں پر کام ہونا تھا وہ کام ابھی تک بھی نہیں ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وائرل ڈیزیز جو ہے ہیپیٹائٹس بی یہ HIV کی طرز پھیلے گا اور نوجوانوں کو مزید شکار کرے گا۔ اگرچہ معالجین نے بھی کہا کہ HIV کا کوئی اس طریقے کا کیس نہیں آیا ہے، لیکن جس طریقے کی صورتحال ابھر کر سامنے آ رہی ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ 33,000 سرینجز ہر دن یوز ہو رہے ہیں ہیروئن کو انجیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ میں زور کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اعداد و شمار ہمارے نہیں ہیں بلکہ ان اداروں کے ہیں جو لگاتار اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ پہلے زمانے میں بنگ چرس کا تھوڑا سا استعمال ہوتا تھا تو لگ رہا تھا کہ شاید آل از ویل ہے، زیادہ نہیں بڑھے گا، لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ کر کے اتنی بڑھی کہ اب سب سے مہنگی اشیاء جو ہیروئن ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہر فرد جو اس دلدل میں پھنسا ہے 80 سے 90 ہزار روپیہ ماہانہ اس پر خرچ کر رہا ہے، اور جس طالب کے پاس، جس طلبہ کے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو وہ بعد میں چوری کرتا ہے، گھر میں چوری کرتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد باہر آتا ہے۔ فٹافٹ سے ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان کے پاس چلیں گے۔ مذہبی پیشوا ہیں غلام رسول حامی، چیئرمین ہے کاروان اسلامی کے۔ بہت پہلے ان کی کوشش بھی ہوئی تھی، آج وہ کوشش کہاں پر ہے اور صورتحال زمینی کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن گراؤنڈ زیرو پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی جو ڈرگ ایڈکٹس ہے، اب مرکزوں کے اندر ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچیں۔ کیا کچھ وہ کہنے ذرا سن لیتے ہیں۔ سر میرے کو ہو گئے ہیں نشہ کرتے 7-8 سال سر، میں بالکل پر میں کرتا ہی تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیڈلر تھا، وہ بیچتا تھا، تو وہ ہمارے پاس آگے کروا دیتا، میں نے بھی کر لیا، پہلے فائل مارتے تھے، پتہ نہیں تھا، پھر 4-5 دن اس نے لگوایا، اس کے بعد ہمیں دردیں وغیرہ ہونے لگی، اس کو فون کیا، جب اس نے بولا 1000 روپیہ کرو، ہم نے کہا یہ کیا، جب 1000 روپیہ دیا سر، پھر کیا، پھر روز کا 1000 روپیہ دینا کہاں سے مینج کرتے تھے؟ سر کرتے تھے، شروع میں ہو جاتا تھا سر، لیکن اب یہ ٹائم آ گیا تھا روز کا 5000 روپے چاہیے تھا سر، ڈوز بڑھتی جاتی ہے، لیکن نشے سے ہم پریشان ہو گئے تھے، گھر والے ہمیں وشواس نہیں کرتے تھے ہم پہ۔ باقی یہ سینٹر جو ہے پولیس لائن والا سر بہت اچھا ہے، ادھر بات ہے جو اس سے متاثر ہوئے، اور اس وقت آہستہ آہستہ کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہے، بہت حد تک یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے۔ گرافکس کے ذریعے کچھ اور چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے بعد ہم اپنے مہمان کے پاس جائیں گے۔ مرکزی خطہ جو منشیات کا اس وقت اڈا بن چکا ہے، شمالی بھارت میں رپورٹس یہ ہیں کہ کشمیر منشیات کا ایک طرح سے مرکز بن چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس خطے کے اندر جموں کے مقابلے کشمیر صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ذرا جلدی سے آگے چلیے گا۔ اور کشمیر یا جموں پروونس کے اندر اس وقت جب آج آپ کے سامنے خبر رکھ رہے ہیں تو ہیروئن کا سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ اب ایک بیماری بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ منشیات کے دلدل میں مبتلا نوجوان جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں، جس میں چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، جس میں ہم نے مختلف نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ دیکھے، اور پولیس اتھارٹیز بھی وقتاً فوقتاً اس کی رپورٹس لاتی ہیں، اور NCRB کا ڈیٹا بھی بتاتا ہے۔ ڈکیتی کے ساتھ ساتھ قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوا، اور اس جانب نوجوان سب زیادہ بائل ہوئے۔ ہیروئن
भंग और कुछ ऐसी जो अद्वियात हैं, जो नशीली अद्वियात हैं, इसका बेतहाशा इस्तेमाल इस वक्त सूबे के अंदर होने लगा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा है। कश्मीर सूबे के अंदर सबसे ज्यादा स्मगल की जाने वाली मंशियात है वो हेरोइन बन रही है, आज की रिपोर्ट्स, आज के आदादोशुमार को सही अगर माना जाए। इसके अलावा HIV और हेपेटाइटिस जैसी जो मुतअद्दी बीमारियां हैं जिनके खतरे में इजाफा हुआ है, मुसलसल इसकी निशानदेही हो रही है और तस्दीक भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कर रही हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। यूनियन टेरिटरी ने मंशियात के इस्तेमाल में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। अब जो उड़ता पंजाब की बात हो रही थी वो वाला टैग खत्म करके उड़ता जम्मू कश्मीर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी जो पंजाब के मुकाबले बहुत आगे चली गई है। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासरा खित्तों में से एक खित्ता कश्मीर सूबा बन रहा है और जम्मू को भी यहाँ साइड लाइन करेंगे तो 10 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूलों के सरबराहान पर बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। और अगले 2 पॉइंट्स जो माहिरीन की राय है, जो ये मानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों की चेकिंग लाजमी है, आइसक्रीम्स वगैरह स्कूलों के आसपास जो चीज़ें बेची जाती हैं, और माहिरीन या जो माहिर नफ्सियात हैं वो ये भी मानते हैं कि इन चीज़ों में अगर चेकिंग होती है, वक्ती तौर पर कंट्रोल किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये मंशियात की रोकथाम के लिए बेहतर यह है कि जब तक बच्चे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में चले जाएं, मराकज़ में उनका इलाज हो, उससे बेहतर है कि पहले एहतियात बरता जाए, जो माहिर नफ्सियात मानते हैं। ये तो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हमने कुछ अहम तरीन बातें रखी और मंशियात की दस्तयाबी और सप्लाई पर भी बात करेंगे कि आखिर दोनों चीज़ों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। माहिरीन ये मानते हैं कि इस वक्त ये जो सप्लाई है ये तो बाद की बात है, लेकिन दस्तयाबी कहाँ से हो रही है, सबसे पहले उस सेंटर को तबाह करने की ज़रूरत है जहाँ से असल में सब लोगों को या हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं। चलिए जनाब, ये तो चंद बातें थोड़ा ग्राफिक के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे की हमने, लेकिन चलते अपनी मजहबी पेशवा गुलाम रसूल हामी साहब, चेयरमैन है कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल के, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बराह रास्त बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब ज्वाइन करने के लिए। आज ज़रा मामला बड़ा अहम है मेरी नज़र में, क्योंकि इसको हम बड़ी प्रायोरिटी के साथ पिछले कई दिनों से चला रहे हैं और एक मुहिम चलाने की कोशिश की है, जिसमें माहिरीन जो हैं इसके और मौलिजीन जो है वो लगातार पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो तो उनका पहलू लगभग हमने समेटने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके की हम पिरवर और ऋषिवर की बात करते हैं और कह रहे हैं कि ऋषियों मुनियों और संतों की सरजमीन जम्मू कश्मीर है, शायद यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई होती, लेकिन अब ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर मंशियात धड़ल्ले से बेची जाती है, मंशियात का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और अब कई लोगों की मौत भी होती है। शायद अभी तक वो एदाद शुमार किसी के पास भी नहीं है, न सरकार के पास है और ना ही कुछ अंजुमनें जो इस पर काम करिए शायद वो इसको बना रही हो। लेकिन जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि हमारी 2 नस्लें इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ख़त्म हो चुकी है और आने वाली 2-3 नस्लें अब इसमें चली जाएंगी अगर आज के दिन हम खड़े होकर, सफारा होकर काम न करें इसके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके चैनल ने हमेशा अपने ख्याल रखा है समाज के उन चीज़ों को आवाम के सामने लाया जाए और बाखबर किया जाए और समाज के हर तबके से मिला जाए। तो आपने इस बारे में बहुत ही काम किया है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद काम करने की तौफीक भी अता करें और आपकी मिशन को इस वसी दायरे से वसी करने की तौफीक दे। यहाँ तक बात है कि मनशियात की आप खुद वाकिफ़ है इस बात से कि हम तो पिछले 2 दहाइयों से चला रहे हैं, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर के ये लोगों को बाखबर और एजुकेट करना चाहिए था हमें, जिस तरीके से हो नहीं पा रहा है। हर कोई इस पर बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर किसी का दायरा महदूद है। वसी से वसी तर दायरा अगर कोई भी खींचे तो मुमकिन है कि जब हम पहले ही इस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे तो इसका कलाकुमा करने के लिए बहुत सारे ज़रायात सामने आ जाएंगे और आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट हमारे सरजमीन पर यह वजह है कि क्योंकि ये शहरों और गांवों वाली सरजमीन है, लोगों को एजुकेशन इस बारे में नहीं मिल रही है प्रॉपरली। मैं पहले भी सरकार से ये मुतालबा कर चुका हूँ कि स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर ही लोग बच्चों को पढ़ाया जाए और बताया जाए कि ड्रग्स एक खौफनाक दरिंदा आपके दरवाजे पे बैठा है
वो कभी भी आपकी जान ले सकता है। यही वजह है कि आज अगर हमने ऐसा किया होता, बाज़ाब्ता तौर इसको एजुकेशन का हिस्सा बनाया होता, तो आज के दौर में हमारे स्कूलों के सामने या हमारे कॉलेजेस के सामने मुख्तलिफ ज़राया से ड्रग्स नहीं पहुँचता, मुनशियात नहीं पहुँचता। बात यह है कि यकीनी तौर आप इस बात से यकीनी तौर आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी कि 2 दिन पहले मैं एक जलसे में था और मुझसे एक आदमी आया और मिला, कहा कि हाँ आमिर साहब, क्या आपने उस मुहिम को मतलब उसमें सूरत लानी थी, आपने सुस्त उसको क्यों किया? कहा कि मेरे 2 भांजे थे, एक तो मर गया, अब दूसरा एडिक्शन सेंटर में, तो वो भी मरने की कगार पर है, कैसे उसको वापस लाया जाए। ये इंतहाई मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं। और आपने पंजाब की जब बात की, मैं सुन रहा था, यकीनी तो पंजाब के मामलात और वहाँ मुनशियात का मसला और है, लेकिन यहाँ का मसला और था। यहाँ मुनशियात से, यहाँ ड्रग्स से, यहाँ नशावर चीज़ों से लोग बड़े नफरत करते थे और नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। बाज़ाब्ता तौर इस पर अगर जो सरकार काम कर रही है एनजीओज के जरिए से देखना है कि क्या वो वाकई वो काम कर रहे हैं, तो उसका कोई असर है ग्राउंड पे कि नहीं। अच्छा जी, हामिद साहब ये भी बात है- बताइए ना, अब जब हम एक चीज़ पहले मैं ज़रा उस पर, चूंकि आपने बात छेड़ दी है, क्या सिर्फ सेमिनार सिंपोजियम करने से यह मामला हल होगा, या हमने अब इन सेमिनारों और सिंपोजियमों से उठकर एक लाइन खींचनी है आइडेंटिफिकेशन की उन लोगों की जो मेरे मुआशरे में, मेरे इलाके में, मेरे शहर में इस जहर को बांट रहे हैं? यहाँ पे मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम अपने तरीके से लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, हम ऐसे माहौल और हालात से गुजर रहे हैं, तो फिर और एक जराइम का इर्तिकाब हमारे घरों से या हमारे मोहल्लों से शुरू हो जाएगा, जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको ग्राउंड पे आकर ऐसे लोगों को बाहर लाना चाहिए जो इस पर काम कर सकते हैं। अगर उनको बाइख्तियार किया जाए, जिस तरीके से पहले बहुत सारी चीज़ों से निपटने के लिए कमेटियां बनाई जाती थी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर सरकार बैक पे खड़ा हो जाता था। तो सरकारी सतह पे अगर लोगों को एजुकेट भी किया जाए और उनके पीछे खड़े रहकर उन्हें मौका फराहम किया जाए कि आप इस वबा को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करें, तो यकीनी तौर इसमें मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% मसला हल उसी से हो जाएगा। यानी जो जैसे आपके जो मोहल्ले जम्मू में- कश्मीर जैसे आपके- मंशियात सॉरी, मुक्त मैं- का नारा है, वो सिर्फ एक स्लोगन है सरकार की तरफ से, और सरकार वाकई तौर पर इतनी संजीदा नहीं है इस मामले की। और जो आप कह रहे हैं कि जनाब जो एनजीओज हैं, जो इदारे हैं, अगर उनके साथ सरकार तालमेल बनाकर काम आगे चलाए तो ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। 2 साल पहले मैं देख रहा था कि 2 साल पहले इस पर सरकारी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने सख्त थे और यकीनी तौर इसका खात्मा होने के करीब था और बहुत हद तक ये रुक चुका था। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं या लोगों को इसके तरफ रागिब करने वाले होते हैं, उनका दायरा ज़्यादा वसी नहीं होता है, वो बिल्कुल कम होते हैं। अगर कम तादाद में इंटेलिजेंस के बुनियाद पर उनका बाज़ाब्ता तौर डाटा और रिकॉर्ड लिया जाए और फिर उनको उस तरफ ले जाया जाए जहां उनकी ज़रूरत है, किसी को ड्रग एडिक्शन सेंटर भेजा जाए या किसी को जेल भेजा जाए, तो सीधी सी बात है, ये महीनों की बात। मैं कहता हूं कि अगर सरकार कुल मिलाकर अगर सरकार और इंतजामिया तो ये कमर कस ले कि हमने रोकना है, ये कोई बड़ा मामला नहीं है, रोका जा सकता है। लेकिन एक चीज तो ये है, लेकिन अब जरा मैं अपनी जिम्मेवारी की भी बात करूं, बहसत सिविल सोसाइटी के और बहसत एक आलिम है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आप हेड करते हैं, और ये बताइएगा क्या मजहबी पेशवा आज के दिन में अपने फराइज पूरा कर रहे हैं? परसों एक छोटा सा मामला हुआ पेश और आनंद फानन में इजलास के बाद इजलास हुए, इजलास के बाद इजलास हुए, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और ये बताया गया कि ये मामला जी इंतहाई शदीद नवीयत का था, इसलिए इस पर यह काम करना जरूरी। क्या आपको नहीं लगता था उस मामले से बढ़कर यह मामला है जहां पर लाखों लोग अभी इस दलदल में हैं और हजारों लोग हर दिन जा रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर फुरूयात और उसूलियात के
का जंग हमेशा रहा है उम्मत में, इसमें कोई शक नहीं, वो होता रहेगा। और उसके सदबाब तभी मुमकिन होता है जब कोई ऐसा वाक़या होता है, मजहबी बुनियाद पर उलमा आते हैं और उसकी रोकथाम के लिए एक साथ हो जाते हैं। वो एक खुश आइंदा कदम है और इंशाल्लाह इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त भी एक अनारकी हमारी पूरी ज़मीन पर छाई हुई थी, जो आपने पिरवर कहा, ऋषि मुनियों की जगह कहा, तो उस अनारकी को ख़त्म करने के उलमा का संगम हुआ, तो वो बहुत अच्छा खुशायदा कदम था। जो अनासर ऐसे होते हैं कि फितना परवर हो तो उस पर तनकीदी करते हैं। रही बात कि ऐसे 1000 मीटिंगों से अफजल ये नशस्त होनी चाहिए कि जिसमें ड्रग्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि इसमें ये किसी मसलक या मजहब का मसला नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का मसला है। हम एक ही कश्ती में सवार है और जहां हम देखते हैं कि इसमें सुराख हो रहा है और हम सब डूब जाएंगे, तो इसलिए उलमा इस पर संजीदा है ही बाज़ाब्ता तौर। क्या मैं ये मानूं कि मजहबी जमातों की खामोशी एक बड़ा जुर्म है आज के दिन में, जो वो लगातार कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि उलमा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर रहे हैं कि सबको आके इस पर काम करना चाहिए। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस है, सोशल है, सबको मिल के इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सिविल सोसाइटी को भी मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, एक मसला ये भी है कि अगर हमारी सोसाइटी या हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुत्हिद होकर जो हमारा एजुकेशन निज़ाम है उसके साथ रब्ता करके एक वसी प्रोग्राम को तरतीब देंगे, जो प्रोग्राम मैंने बाज़ाब्ता तौर लिखा है, उसको हमने कलम किरतास पर लाया है और उसके कुछ कापियां हमने कहीं मकातिब फिक्र को भी भेजा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दिया था। अगर उस प्रोजेक्ट को हमलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 साल बहुत ज़्यादा है, 7-8 महीने में या मुनशियात का 80 से 90% खात्मा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब ये भी ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। अब जिस तरीके की सूरत हाल अभी हमारे सामने, आप कह रहे हैं कि मजहबी पेशवा तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इदारों की बात करते हैं और जब डोनेशंस की बात करते हैं, जो एक ओपन डोनेशन होता है, सब लोग देते हैं, चंदा देते हैं, अगर एक बार ये फैसला हो जाए, तमाम मज़ाहिब के लोग ये फैसला करें कि जनाब हम वो पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे जिस पैसे पर शक व शुबात है कि ये आदमी ने ये इतना पैसा लाया कहाँ से कम कलील मुद्दत के दौरान, जिसकी आमदनी कल तक 1000-10,000 रुपया थी, वो 10 करोड़ रुपये का मालिक कैसे बना, उससे बड़ी खुशी खुशी पैसा लिया जाता है, इदारे बनाए जाते हैं, उसकी आड़ में वो बड़े और भी काम करता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मजहबी पेशवा भी एक लाइन खींचे आज के दिन में कि भैया मैंने अपनी रियासत को बचाना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन खींचना आज के दिन में? मेरे जहन में ऐसा मसला नहीं था, लेकिन आपने मुझे एक अच्छी बात की तरफ तवज्जो दे दिया। तो हम 2 दिन बाद एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मकातिब फिक्र से भी उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा कदम है, मैं उनके सामने इस चीज़ को रखूँगा। और ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी को सोसाइटी में अगर वो ड्रग्स और मुनशियात से बाहर निकल आए, ये भी एक अच्छी बात है। इस बात के लिए ये भी एक कदम था कि पहले डिसाइड किया गया था कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर, किसी गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर ऐसा कोई घराना है जो बाज़ाब्ता मुनशियात की स्मगलिंग भी कर रहा है और फैला भी रहा है, तो उसके साथ हम सोशल बाइकाट करें, दूर रहें, ताकि उसको एहसास हो जाए कि हमने इससे बचना है और ये एक जहर जो मैं फैला रहा हूँ उससे मैं दूर हो जाऊंगा। तो ये भी एक कदम है, मैं समझता हूँ कि इस कदम की सराहना करनी चाहिए और सबको एक लाइन खींचनी चाहिए इस बारे में। और यहाँ मैं एक और बात अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि मजहबी इदारे या मसाजिद, खानकाहों, और आप जानते हैं कि यहाँ तो मजहबी दायरा ही ज़्यादा वसी है, उसमें अगर हर मिंबर से 5 या 7 मिनट, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आखिरी 5 और 7 मिनट सिर्फ ड्रग्स पर बोला जाए, तो इससे भी बहुत हद तक फायदा हो सकता है। मौलाना गुलाम रसूल हामिद साहब, ये हम देख रहे हैं हुकूमत या इदारे तो मानते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस हमारी है या पॉलिसी ऐसी है, वो कितनी मौसर है हम देख रहे हैं, आदाद शुमार हमने रख दी हैं, लेकिन मंशियात के मुकदमात में ज़मानत और जो सज़ा का तस्वुर है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो काफ़ी है? अगर ये काफ़ी होता तो क्या ये आदाद शुमार जब आज हम देख रहे हैं मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, ये कम हो सकते थे? जो सज़ा का एक तयन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानूनी एतबार से इस तरह के मामलात में हम शिकस्त खा जाते हैं कम सज़ा या कवानीन की वजह से? देखिए, सीधी सी बात है कि हम जब दुनिया का तायराना तौर जायजा लेते हैं
बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ 0% भी ड्रग्स का तस्वुर ही नहीं है। जी। ड्रग्स मुनशियात आना तो अलग बात है, लेकिन तस्वुरात ही नहीं है। वो इसलिए कि वहाँ इस बारे में सख्त कानून है और सजाएं सख्त हैं। हमारे यहाँ मुजरिम को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद वो छूट जाता है। हमारे यहाँ मैंने खुद देखा है कि लोग अपने बच्चों को कोशिश करके पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाते हैं ताकि वो मुनशियात से खाली होकर वापस जेलों से निकले। लेकिन अगर इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत भी लाएं, और जो कवानीन हमारे भी सख्त है, कवानीन लॉ हमारे यहाँ सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका निफाज सख्त नहीं है। अगर इस कानून के दायरे को और थोड़ा सख्त किया जाए या कोई मजबूत बिल इस पर पार्लियामेंट में लाई जाए और इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए, और साल में कुछ ही लोगों को अगर सख्त से सख्त सजाएं मिले, तो यकीनी तौर सोसाइटी के अंदर इस जुर्म के बारे में लोगों के दिलों में खौफ आ जाएगा और लोग इससे दूर चले जाएं। हम सब एक आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं मजहबी पेशवाओं को देखता हूँ और इंटायर वादी कश्मीर को देखता हूँ, फिर जम्मू प्रोविंस को देखता हूँ, अक्रॉस द तमाम रिलीजन्स के, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, तो सबकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन आज भी कुल जमाती मजहबी इजलास नहीं हुआ इस पूरे मामले पर इंटायर जम्मू कश्मीर में, जो एक गिला है तमाम लोगों को कि इस पर अक्रॉस द रिलीजन सबको एक पेज पर आना चाहिए था, कोशिश नहीं हुई। एक और दूसरा, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वादी कश्मीर की तमाम मजहबी इदारे एक होकर कम से कम एक इदारा तो बनाएं जहां पर इस तरीके के नौजवानों की रिहैबिलिटेशन हो, दीनी माहौल के अंदर, मजहबी माहौल के अंदर, फिर उन्हें दीन भी समझाया जाए और तमाम चीज़ें बताई जाए ताकि जब वो बाहर आए तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ज़िंदगी बहाल कर पाए। क्या इस तरीके की कोशिश करने की आज की ज़रूरत नहीं है? देखिए गौर साहब, ये अगस्त के आखिर में, सितंबर के शुरू के हफ्ते में, पहले हफ्ते में हम यहाँ श्रीनगर में तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं का इजलास बुला रहे हैं, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख से। उसमें हम सबको इस चीज़ के लिए आमादा कर रहे हैं और हमारे राब्ते कंटिन्यू उनसे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म के पर जमा करके कम से कम मुनशियात पर हम एक साथ बात करें, और इस पर इंशाल्लाह हमारी तैयारियां चल रही हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह और रहमान अल्लाह ने चाहा तो आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे कि सारे सिविल सोसाइटीज़ के जितने तबका फिक्र है और जिस तरीके से हमारे मजहबी जमातें हैं, और फिर सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं बल्कि सब, वो चाहे क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनके पेशवाओं का एक बड़ा इजलास इंशाअल्लाह रहमान सिर्फ ड्रग्स के मामले में इंशाअल्लाह रहमान हम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान ये आवाज़ जो आपकी ख्वाहिश है पूरी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सुलैमानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूँकि मुसलसल हम चल रहे थे, पिछले एक हफ्ते से हमने सिर्फ उन लोगों से अब बात की जो डॉक्टर्स हैं। अब जो सिलसिला शुरू आज से किया है ये मजहबी पेशवाओं का है। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ एंगल से इस पर भी गुफ्तगू हो। अगले हफ्ते चलेंगे तो कानूनी माहिरीन से भी गुफ्तगू होगी, और कुल मिलाकर फिर उन लोगों से भी बात करेंगे जो सियासत के अखाड़े में है कि आखिर वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी।